Welcome back students. Today we are going to discuss human respiratory system. The major organs of human respiratory systems are one pair of nostrils or external layers, then the nasal chamber, then pharynx, larynx, trachea, then we have bronchi and bronchioles, and then we have ribs, intercostal muscles and diaphragm, and then the one pair of lungs. So first of all, nostrils or external layers. We have one pair of external layers or nostrils which open into the nasal chamber. Nasal chamber separated by nasal septum, and then the pharynx. Pharynx is the common opening for both. It is a common passage, you can say, for both the food and the air. So this one is pharynx, and then after pharynx, that is larynx. Larynx is called voice box. जैसे जो हमारी wind pipe है, this is our wind pipe. Wind pipe के ऊपर this structure is called larynx. Larynx और voice box had vocal cord, and when we exhale the air, हम जब सांस छोड़ते हैं, then due to the vibrations of the vocal cord, sound is produced. तो since ये भी मतलब आपको काम कर रहा है due to the exhalation of the air, हम जब सांस छोड़ते हैं उसके बेसिस पे इसमें वाइब्रेशंस हो रही है, उसके बाद ये काम कर रहा है, इसलिए हम इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट में इंक्लूड करते हैं. देन वी हैव ट्रैकिया. दिस वन इज ट्रैकिया. दिस इज ट्रैकिया और विंड पाइप. दिस स्ट्रक्चर इज ट्रैकिया और विंड पाइप. Before entering into the lungs, trachea divides into two parts, and that is called bronchus. Plural is called bronchi. Bronchus, after entering into each lungs, further divides into many branches which are called bronchioles, and bronchioles finally terminates into a sac-like structure which is called alveoli. So right here, bronchi, bronchioles and alveoli. Then we have diaphragm. Diaphragm is a muscular structure which divide our body into two chambers. The upper is called thoracic chamber and the lower is called abdominal chamber. Inside the thoracic chamber के अंदर lungs है, और lungs के ऊपर there are 12 pairs of ribs, and ribs are such cage-like structure. Ribs आगे और पीछे की तरफ joint होते हैं, और जैसे पीछे होंगे vertebral column से joint होंगे, और आगे जो यहाँ पे chest bone होती है, sternum, उससे joint होते हैं. So that's why they form cage-like structure, and that is called rib cage. And inside this rib cage, our lungs and heart is protected due to the bones, that is ribs. And then the major part of the respiratory system, that is the lungs. Lungs, we have two pairs of lungs. तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे. नॉस्ट्रिल वी ऑलरेडी नो, एक्सटर्नल जो ओपनिंग्स होती है जिसके थ्रू एयर अंदर जाती है. नेजल चैम्बर्स के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस सिक्रीट करती है, एंड अगेन इट हैज फाइन हेयर्स. नेजल चैम्बर के अंदर काफी सारी फाइन हेयर्स होती हैं जो बेसिकली जो कुछ भी जो डस्ट पार्टिकल जो एयर के साथ जो अंदर जो जाती है, ये उसको ट्रैप करती है. एंड देन आफ्टर फेरिंग्स. अब आप यहां देखिए, जैसे फेरिंग्स मैंने बोला दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड द एयर. तो हम जब फूड को स्वॉलो करते हैं, तो फूड स्वॉलो करने पर फूड instead of going inside the esophagus, that is the food pipe को छोड़ के ये फिर आपको ट्रैकिया में भी जा सकता है, विंड पाइप में भी जा सकता है, फिर लंग्स के अंदर एंटर कर सकता है, बट इट नेवर हैपेंस. क्यों? it has a flap like structure, a flap like covering which is called epiglottis. Epiglottis is basically a flap made up of cartilage. और ये जब हम फूड को swallow करते हैं, आप उस समय फील करेंगे, हम जब फूड को swallow करते हैं तो फिर उस समय हम सांस नहीं ले सकते, हम इनहेल नहीं कर सकते. रीजन इज दैट कि जैसे हम सांस लेते हैं, एपिग्लॉटिस जो होता है वो इस ओपनिंग को क्लोज कर देता है. दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ग्लॉटिस, एंड दिस इज फूड पाइप, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. तो और फूड पाइप के ऊपर भी एक यहाँ पे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्लोज, दिस इज कॉल्ड गुलेट. फूड पाइप की जो ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं गुलेट. तो अब ये सारी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे होती है. अब जैसे हम लंग्स के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, लंग्स में हमारे पास क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं. ह्यूमन लंग्स के स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं. This is windpipe
और ट्रैकिया, विंड पाइप और ट्रैकिया. ट्रैकिया डिवाइड्स into two parts and that is called bronchi. Bronchi enters into lungs. We have two lungs, left lungs and right lungs. Left lung is slightly narrow. Left lungs जो है वो narrow structure है and it has two lobed. It has two lobed structure and here is a concavity which is called cardiac notch, which is to accommodate heart. यहाँ पे हार्ट होती है. राइट लंग्स जो है वो लेफ्ट लंग के कंपैरिजन में थोड़ी सी ब्रॉड होती है और थोड़ी सी ऊपर की तरफ ये होती है. एंड इट इज थ्री लोब स्ट्रक्चर. राइट लंग इज अ थ्री लोब स्ट्रक्चर. तीन लोब यहाँ पे हो गए. ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ रेस्ड होती है टू एक्कोमोडेट द लीवर. यहाँ पे लीवर होता है. एंड जस्ट इसके नीचे हमारे पास फ्लैट मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड डायफ्राम. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डायफ्राम. आफ्टर एंटरिंग इनटू द लंग्स में एंटर करने के बाद जो ब्रोंकस है ये और छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती है एंड दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड ब्रोंकियोल्स. दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड ब्रोंकियोल्स. And each bronchioles terminate into a balloon-like structure, and this balloon-like structure is called alveoli. Alveoli are the place where gaseous exchange takes place. यहीं पे हमारी बॉडी के अंदर gaseous exchange होती है. Previous lecture में डिस्कस किया था in case of cutaneous respiration, skin is very moist, skin is very thin, it is richly supplied with blood vessels that is highly vascular, very thin, very vascular, moist structure. जो कि अर्थवर्म में होती है. हमारी बॉडी में ऐसा पॉसिबल नहीं है बट ऑल दिस रिक्वायरमेंट आर फुलफिल्ड बाय दीज एल्वुलाइज. एल्वुलाइज में ये सारी प्रॉपर्टीज होती है. एल्वुलाइज की जो वॉल होती है दैट इज वेरी वेरी थिन, दिस इज सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज एंड इट आल्सो रिमेन्स मॉइस्ट. और इसकी वजह से यहाँ पे थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गैसेस एक्सचेंज हो जाती है. गैसेस एक्सचेंज का मतलब हम जिस एयर को इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है और इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड है उसमें CO2 की क्वांटिटी ज्यादा होती है. देन CO2 डिफ्यूजेस आउट एंड ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन. तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे होगी. तो दिस इज एल्वेओलाई. इन सारे स्ट्रक्चर को हम एल्वेओलाई बोलेंगे. दिस ऑल आर एल्वेओलाइज. काफी सारी एल्वेओलाइज होती है यहाँ पे. दिस ऑल आर एल्वेओलाइज. अगर दोनों लंग्स को मिला दे तो लगभग 300 मिलियन एल्वेओलाइज आर देयर. 300 मिलियन एल्वेओलाइज आर देयर. और इन पूरी एल्वेओलाइज को अगर सारी एल्वेओलाइज को एक बार आप खोल करके आप इसको बिछाएं तो जनरली इट कवर्स ऑलमोस्ट 80 मीटर स्क्वायर का एरिया ये आपको मतलब कवर करती है. तो we can label it. This is larynx और voice box. जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया. और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन लैरिंक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होती है वो वाइब्रेट करते हैं, उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है. एंड दिस इज कॉल्ड ट्रैकिया और विंड पाइप. दिस वन इज ट्रैकिया. एंड अगेन हियर ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस हाफ रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर. ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस हाफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर. व्हाई? ट्रैकिया इज वेरी डेलिकेट पाइप लाइक स्ट्रक्चर. और अंदर इसके फिर म्यूकस मेम्ब्रेन भी है. इमेजिन कीजिए हम जब हमने एक्सहेलेशन किया, जब एयर को हमने बाहर छोड़ा, इसके अंदर की प्रेशर खत्म हो गई एंड इट विल कोलैप्स. अगर ये इस ढंग से हो जाए तो फिर ये जल्दी ओपन नहीं होगी बिकॉज जो म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से आपस में चिपक जाएंगे. तो ऐसा नहीं हो, दैट्स व्हाई इसके ऊपर हाफ रिंग्स होती है, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है, सी शेप्ड रिंग्स. इस तरह की सी शेप्ड रिंग्स होती है इसके ऊपर जो कि इसको कोलैप्स होने से बचाती है व्हेन देयर इज नो एयर इनसाइड द ट्रैकिया. एंड दीज कार्टिलेजिनस रिंग्स आर इवन प्रेजेंट इन द ब्रोंकाई आल्सो. तो ट्रैकिया, दिस इज आवर लेफ्ट लंग. दीज आर ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंकस मेजर कर लेते हैं. दिस इज ब्रोंकस
and these fine tube-like structures, bronchioles, and these are alveoli, and this concavity is called cardiac notch, to accommodate the heart, and this muscular structure is called diaphragm. Now, तो यहां पे गैसेस एक्सचेंज होगी, बट गैसेस एक्सचेंज takes place through the diffusion like in all other organisms, but only diffusion is not sufficient to supply oxygen each and every cell of the body, because diffusion is a very slow process. diffusion एक काफी slow process है, और केवल diffusion पे अगर डिपेंड रहा जाए तो ऑक्सीजन को लंग से पांव तक पहुंचने में it takes almost 2 years, और इतना हम वेट नहीं कर सकते. तो ऑब्वियसली वी हैव रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होती है, एंड दैट पिगमेंट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन हैज ग्रेट एफिनिटी विद ऑक्सीजन. हीमोग्लोबिन काफी तेजी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. 1 molecule of hemoglobin can bind with the 4 molecule of oxygen, and it forms oxyhemoglobin, and in this way oxygen is transported each and every cell of the body in the form of oxyhemoglobin. तो आप देखिए यहां पे जैसे ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होगी, जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आएगा, दिस इज हीमोग्लोबिन, 1 molecule ऑफ हीमोग्लोबिन Hb से हम इसको डिनोट करते हैं, दिस इज Hb, O2 के साथ रिएक्ट करता है, एंड इट इज HbO2, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीहीमोग्लोबिन, तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. आफ्टर रेस्पिरेशन के में ऑक्सीडेशन होगी, फूड मॉलिक्यूल ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाएगा, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड. नाउ कार्बन डाइऑक्साइड को फिर लंग्स में ले आना है ताकि वो एक्सहेलेशन की प्रोसेस से बॉडी से बाहर निकले. देन इसके लिए CO2 इज इजिली सॉल्युबल इन वाटर, एंड वी नो दैट हमारे ब्लड के अंदर का जो प्लाज्मा है वो मेनली उसमें जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है मोर देन 90% दैट इज वाटर. तो कार्बन डाइऑक्साइड, मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इनसाइड द प्लाज्मा एंड ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स, और उसके बाद उसको एक्सहेलेशन की प्रोसेस से हम बाहर निकाल देंगे. बट सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाई हीमोग्लोबिन, एंड दैट इज Hb plus CO2, and this is called HbCO2. This is carbamino hemoglobin. Now sometime अगर एयर में जो हम जिस एयर को ब्रीद इन कर रहे हैं, अगर उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए तो सफोकेशन की वजह से डेथ हो जाती है. क्यों ऐसा होता है समझिए. यहां पे व्हाट हैपन, हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, और मान लो इमेजिन करो कार्बन मोनोऑक्साइड भी अवेलेबल है. अगर हम जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा है. नाउ अब ऑक्सीजन जितनी तेजी, हीमोग्लोबिन जितनी तेजी से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है. इट हैज ग्रेट एफिनिटी विद कार्बन मोनोऑक्साइड एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. इन दैट केस इट विल नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करेगा. किसके साथ कंबाइन करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, एंड इट विल फॉर्म Hb plus CO. This is HbCO, and this is called carboxy hemoglobin. अब बॉडी के सेल्स को जो पहले कार्बन जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी, अब ऑक्सीजन डिफिशियंसी क्रिएट हो जाएगी, बिकॉज हीमोग्लोबिन रेडली कंबाइन कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड से, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करके कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बना रहा है, और ये कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बॉडी के सेल्स तक पहुंच रहा है. Then what will happen? Due to the deficiency of oxygen, suffocation होगी, deficiency of oxygen होगी, और बॉडी के सेल्स जो होगी वो ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी, और उसकी वजह से मतलब डेथ हो जाती है. That's why carbon monoxide is a poisonous gas, and it is produced by the incomplete combustion. जैसे अगर
कमरे में हमने कैंडल बर्न किया हुआ है। एक तो कैंडल अगर बर्न होता है तो कैंडल बर्निंग के लिए ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है और फिर उसके साथ साथ जो इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ। और अगर कमरे के सारे खिड़की दरवाजे बंद है तो उस केस में क्या होगा, कमरे के अंदर की ऑक्सीजन धीरे धीरे कंज्यूम होती जाएगी और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और जो लोग भी वहां पे मौजूद हैं वो इनहेलेशन पे इस गैस को ज्यादा इनहेल करेंगे और फिर सफोकेशन की वजह से इस कंपाउंड ये वाला कंपाउंड फॉर्म होगा और फाइनली डेथ विल अकर। तो इसलिए जब भी हम मतलब किसी भी अगर बंद कमरे में बैठे हैं और इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है तो हम कैंडल वगैरह हम कुछ भी अगर मतलब बर्न कर रहे हैं तो वेंटिलेशन होनी चाहिए, हवा आने जाने की फैसिलिटीज होनी चाहिए, अदरवाइज ये कंडीशन हो जाती है। चलिए अब देखिए, अब हम लंग्स के ऊपर जैसे मैंने बोला कि एक आपको फिर हमारे लंग्स में जैसे मतलब 2 पेयर्स ऑफ लंग्स है। बेसिकली जो लंग्स होती है वो पिंकिश स्ट्रक्चर होती है और लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, दैट इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और प्लूरल मेम्ब्रेन होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है एंड तो इस तरह से हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होती है, ऑक्सीजन को बॉडी के सेल्स तक पहुंचाया जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ले आया जाता है लंग्स तक और एक्सहेलेशन की प्रोसेस से उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। नाउ अब आप देखिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, किस तरह से एयर हमारे बॉडी के अंदर जाती है और किस तरह से एयर बॉडी से बाहर निकलती है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। देखिए यहां पे दिस इज आवर लंग्स, मैं साइड व्यू ले रहा हूं, दिस इज आवर लंग्स, एक लंग्स की बात कर रहा हूं। चलिए लंग्स के ऊपर क्या है हमारे पास, लंग्स के ऊपर हमारे पास रिब केज है, तो दिस वन इज रिब केज, ये रिब केज हो गई, दिस इज रिब केज। ये रिब केज के अंदर अब क्या है, रिब केज पे जैसे रिब केज पे रिब्स है और ये सारी रिब्स हो गई, दीज आर रिब्स, 12 pairs of ribs are there और रिब्स के बीच बीच में वी हैव स्पेशल मसल्स विच आर कॉल्ड इंटरकॉस्टल मसल्स। इस मसल्स को हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। These muscles are intercostal muscles. These intercostal muscles are responsible for the movement of upward and downward movement of the rib cage. तो और इसके नीचे देखिए, नीचे यहां पे हमारे पास डायाफ्राम है, दिस इज डायाफ्राम, दिस इज डायाफ्राम। व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन में क्या हुआ, हमने एयर हम जब इनहेल करते हैं, नाउ दिस इंटरकॉस्टल मसल्स पुशेस द रिब्स आउटवर्ड, ये रिब्स को, रिब केज को बाहर की तरफ करती है। तो बाहर की तरफ जब रिब केज हमारा आएगा तो अंदर ये जो दिस इज जो थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज होगी और वॉल्यूम इंक्रीज होगी देन इट विल यहां पे इस प्रेशर से जो हमारा जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम जो डोम सेट स्ट्रक्चर होती है, डायाफ्राम नीचे आ गया, डायाफ्राम नीचे आ गया और रिब केज की क्या हो गई, रिब केज की वॉल्यूम, थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। नाउ विंड पाइप से जो एयर आ रही है, विंड पाइप की जो एयर है वो हाई प्रेशर पे है और यहां पे क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई एंड वॉल्यूम ज्यादा हो गई तो ऑब्वियसली प्रेशर इनसाइड द थोरैसिक कैविटी डिक्रीजेस एंड वी नो दैट एयर एंटर्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, एयर जो होगी वो अंदर आएगी, लंग्स के अंदर एयर आ गई, ठीक है। नाउ तो इनहेलेशन में क्या होगा, सबसे स्टेप हम देखते हैं, कॉस्टल मसल्स pushes the rib cage या rib cage outside। क्या हुआ, diaphragm becomes flat
डायफ्राम फ्लैट हो गया, वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity increases and air moves in. एयर जो थी वो अंदर आ गई. नाउ ड्यूरिंग एक्सहेलेशन व्हाट विल हैपन? अब आप देखिए एक्सहेलेशन में क्या होगा. ड्यूरिंग एक्सहेलेशन में उल्टी प्रोसेस होगी. During exhalation, what will happen? Intercostal muscles pulls the rib cage inward. Rib cage को अंदर की तरफ pull करेगी. And then what will happen? The volume of thoracic cavity decreases. Diaphragm again become dome shaped. Diaphragm फिर से ऊपर की तरफ आ जाएगी, dome shaped हो गई. And in that case, इसकी volume decrease हो गई. And अब बाहर जो एयर है वो फिर लो प्रेशर पे हो गई, अंदर की जो एयर थी वो हाई प्रेशर पे आ गई. एंड वी नो दैट एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. तो अब एयर यहां से बाहर की तरफ जाएगी. एयर यहां से निकल करके जो भी कुछ भी एयर है अब ये निकल करके बाहर चली गई. तो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, तो एक्सहेलेशन व्हाट हैपेन? एक्सहेलेशन लिखते हैं. एक्सहेलेशन कॉस्टल मसल्स pulls the ribs inward. और इसके साथ के साथ डायफ्राम की मूवमेंट भी क्या होगी? डोम शेप्ड हो जाएगी. अगेन एक बात हमें ध्यान रखनी है कि बेसिकली कॉस्टल मसल्स की वजह से डायफ्राम की मूवमेंट नहीं हो रही. डायफ्राम की मूवमेंट अपने लेवल पे होती है. तो डायफ्राम, इसके साथ साथ डायफ्राम भी जो डायफ्राम बिकम डोम शेप्ड. डायफ्राम जो है वो डोम शेप्ड हो गया.